Hello students, my name is Priyanka Pathak. I am Assistant Professor at BBD University in Mass Comm Department. So student, in this video lecture you will study about the subject Principles of Communication. We have already discussed the various topics in the subject of Principles of Communication in the previous lectures. That is what is communication, what are the different types of communication, what are the functions and characteristics of communication, what is mass communication, and what are the functions and characteristics of mass communication. These all are the topic of first module. And the second module, we have discussed the normative theories of press. There are four theories initially, the four theories of press, and we have already discussed the three theories that are authoritarian theory, libertarian theory, and Soviet communist theory. So student, in this video lecture, we will study about the theory that is social responsibility theory, the fourth theory of normative theories of press. And today in this video lecture, we will discuss about the social responsibility theory. So let's begin. So in this video lecture, students, we will cover the topic social responsibility theory, the what is it all about, the introduction of social responsibility theory, origin of social responsibility theory, feature of social responsibility theory, and the fourth point we will discuss the examples of some examples of social responsibility theory. So now what is social responsibility theory? The word social responsibility already explained itself, the theory. This is a theory which talk about the media responsibility towards the society. Yes, how the media should be responsible towards the society and the citizens of the society or citizens of the country. So, in the previous theories like authoritarian theory, we have discussed that the media is totally under the control of the powerful elites and the governing elites. In libertarian theory, we have discussed that the media should be free from any restrictions and not a single restriction should be on the media. Media should be free to publish and write anything if it is against the government also. गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी अगर कुछ है तो वो भी मीडिया पब्लिश कर सकती है एंड ब्रॉडकास्ट कर सकती है. In Soviet communist theory, we have discussed that media should be under the guidance of the leader of the particular nation, and media should be controlled by the leader of the nation, but here's a clause that the control of the media should be in the benefit of the nation, should be for the upliftment of the nation, for the societal change. Okay, and so in social responsibility theory, uh, this theory says that media, uh, if media have the power, then it should be responsible towards the society. So social responsibility theory is an outgrowth of the libertarian theory. However, the social responsibility theory does not assume that anyone can use the media to publish anything like libertarian theory. Yes, but जो social responsibility theory कहती है कि मीडिया को कुछ भी नहीं छापना है लाइक लिबर्टेरियन थ्योरी में. दैट मीन्स लिबर्टेरियन थ्योरी में ये था कि मीडिया कुछ भी कभी भी किसी के बारे में भी पब्लिश कर सकता है, बट इन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्योरी इट इज़ नॉट लाइक दैट द मीडिया शुड पब्लिश एनीथिंग एंड like without seeing anything, the media should publish anything and at any time. So here is the clause. So instead, this theory requires the media to adhere to professional standards and codes of conduct when exercising their editorial freedom.
यस, सो ये थ्योरी सजेस्ट करती है, ये थ्योरी कहती है कि मीडिया को हमेशा एक प्रोफेशनल स्टैंडर्ड के अंदर अंडर प्रोफेशनल स्टैंडर्ड और कोड ऑफ कंडक्ट के अंडर ही काम करना चाहिए, और जो उसकी फ्रीडम है, जो एडिटोरियल राइटिंग में जो फ्रीडम जो वो इंजॉय करते हैं, उसको प्रोफेशनल स्टैंडर्ड और कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर ही करना चाहिए, उसके बियॉन्ड जाके कभी भी कोई भी चीज़ पब्लिश नहीं करनी चाहिए. सो द एडिटोरियल फ्रीडम should adhere professional standard and code of conduct. In social responsibility theory, the press is taken to be for the people and society. Yes, the name suggests social responsibility theory, so it says that media should have certain social responsibility theory, social responsibility towards the people and the society and the country. The task of the press is to make a code of conduct and follow it. सो यहाँ पे प्रेस को अपना खुद का एक कोड ऑफ कंडक्ट जो है उसको फॉलो करना है, और किसी की प्राइवेसी को ब्रीच नहीं करना है, और कुछ भी बियॉन्ड द कोड ऑफ कंडक्ट जाके पब्लिश और कवर नहीं करना है. टू डेवलप अ स्टैंडर्ड इन जर्नलिज्म, to make journalism better, to protect journalism, and to have penalties if any journalist violate the code of conduct. So here the social responsibility theory says that the media and the journalist and the editor should work under certain code of conduct uh, of the press, and should also maintain the professional standard of their work, and the code of conduct should follow to make journalism better and to protect journalism. जो भी वो काम जिस चीज़ के लिए जर्नलिज्म है उस चीज़ को अचीव किया जाए, बेसिकली उस पॉइंट को अचीव किया जाए थ्रू द कोड ऑफ कंडक्ट एंड थ्रू द प्रोफेशनल स्टैंडर्ड. This way, the facts provided by the press are analyzed and interpreted so that the people get true information and understandable news. This helps maintain social harmony by revealing social evils like corruption and discouraging other bad conduct. Yes, so social responsibility says that कि जो journalist हैं, जो reporters हैं, उनको इस तरीके की उनको न्यूज़ पब्लिश करनी चाहिए उनको, जिससे कि करप्शन जो है वो रिवील हो और जो करप्ट्स हैं उनके खिलाफ एक्शन लिए जाएं, एंड उनकी जो न्यूज़ स्टोरी जो भी वो कवर करते हैं, इट शुड मेंटेन सोशल हार्मनी. मतलब वो पीसफुल, जो एक पीसफुल माहौल होता है उसको हमें अपनी कंट्री में, अपनी सोसाइटी में मेंटेन करना है. दैट मीन्स कि रिपोर्टर्स को ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना है, या ऐसी न्यूज़ को ऐसे न्यूज़ को ऐसे प्रोजेक्ट नहीं करना है जिससे कि जो हमारी हार्मनी है, हमारी जो कंट्री की पीस है, सोसाइटी की पीस है, वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो, लोगों में भेदभाव, लोगों में हेट्रेट क्रिएट हो और आपसी दंगे शुरू हो जाए, मतभेद शुरू हो जाए. जो भी सोसाइटी में, जो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए जो रिपोर्ट्स है, वे सोसाइटी के वेलफेयर के लिए जो न्यूज़ हैं, जो इवेंट्स हैं, उनको कवर करना चाहिए, करप्शन को रिवील करना चाहिए. सो दिस ऑल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सेज. The media is taken as a place for the voiceless to have a voice and develop public opinion, where each and every person has a right to speak, express, and publish. Yes, so here the media is taken as a place for the voiceless. Yes, this theory says that कि the media give the voice to the voiceless. जो voiceless हैं उनके लिए ये मीडिया जो है वॉइस का काम करती है कि वो अपनी चीज़ें जो अपनी बातें जो नहीं कह पा रहे हैं उनके बिहाफ पे मीडिया उस चीज़ को कवर करे, प्रेस उस पर्टिकुलर पॉइंट को कवर करे, गवर्नमेंट तक एंड अथॉरिटीज़ तक वो बात पहुँचाए. And here the media should also develop certain public opinions where each and every person has a right to speak. Yes, so media एक ऐसा environment create करे, एक ऐसा माहौल create करे जहाँ पे लोगों के opinions develop हो और हर एक individual person को बोलने का अधिकार हो, ऐसा मंच उनको मिले, ऐसी प्लेटफॉर्म उनको मिले जहाँ पे वो अपने व्यूज़ को, अपने पॉइंट को रख सकें और शेयर कर सकें.
और उनके वो पॉइंट ऑफ व्यूज़ और उनकी जो भी उनके थॉट्स हैं वो प्रेस में, वो आपके मीडिया में पब्लिश भी हों और ब्रॉडकास्ट. It is considered not an end but a tool for social development. Yes, so according to social media theory, according to social responsibility theory, the media should act as a tool for the social development. उसके थ्रू कहीं ना कहीं सोसाइटी में डेवलपमेंट हो सके. Therefore, the objectives of media are stated to inform, document, analyze, interpret, mediate, and mobilize by creating and finding solutions. Yes, so here the main objective of media is to inform the public, document the information, analyze the situation, event happening, interpret the situation, event happening, mediate and mobilize by creating and finding solutions. Yes, so वो एक तरीके से मीडिएट का काम करते हैं, एक बिटवीन द सोसाइटी, बिटवीन द पीपल एंड द अथॉरिटीज़. और वो मीडिया शुड ऑल्सो क्रिएट ideas and find solutions of the problems of the society. Now, what is the origin of social responsibility theory? Now, the social responsibility theory can be said to have been derived from the Hutchins report. Hutchins report. Yes, so the social responsibility theory is derived from Hutchins report, जिनकी report जो कि एक entitled A Free and Responsible Press. So, a journal report on mass communication, जो हचन्स कमीशन था, उसने एक रिपोर्ट तैयार की जो कि जिसका टाइटल था फ्री एंड रिस्पॉन्सिबल प्रेस. जर्नल रिपोर्ट ऑन मास कम्युनिकेशन पे ये एक रिपोर्ट थी. न्यूज़पेपर, रेडियो, मोशन पिक्चर, मैगजीन्स कवर्ड ऑल मास कम्युनिकेशन पे ये इनकी रिपोर्ट थी. तो सो द हचन्स कमीशन ऑन द फ्रीडम ऑफ प्रेस 1947 was a private organization established and financed by Henry Lewis of Time magazines. Yes, so एक private organization थी Hutchins Commission, जो कि प्रेस की फ्रीडम पे इस्टेब्लिश था, जो एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन थी जो इस्टेब्लिश की थी हेनरी लुइस ने, जो टाइम्स मैगजीन के थे. सो रॉबर्ट हचन्स द चेयरमैन ऑफ द कमीशन. सो जो कमीशन थी हचन्स कमीशन, उसके जो चेयरमैन थे रॉबर्ट हचन्स was a chancellor of Chicago University at the time. तब वो शिकागो यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर थे, and he was assisted by 12 other who were expert in different fields. Yes, so उस कमीशन के चेयरमैन थे, जिस कमीशन को 12 और लोगों ने जो डिफरेंट फील्ड के एक्सपर्ट्स थे उन्होंने असिस्ट किया था. द रिपोर्ट अपीयर्ड इन 2 वॉल्यूम्स. सो जो रिपोर्ट थी प्रेस मास कम्युनिकेशन पे, वो 2 वॉल्यूम्स पे आई थी. द फर्स्ट ऑन न्यूज़पेपर, जो एक पहली रिपोर्ट थी वो न्यूज़पेपर की, टोटली ऑन न्यूज़पेपर, और जो सेकेंड रिपोर्ट थी वो अदर मीडिया पे थी, जो आपके अदर मास मीडियाज़ हैं लाइक रेडियो, टेलीविज़न, मैगजीन्स, बुक्स, उन पे थी. बट जो फर्स्ट रिपोर्ट थी वो बेसिकली आपकी न्यूज़पेपर पे थी. So the commission found that the free market approach to the press freedom has not met the information and social need of the less well-off class. In fact, it had increased the power of a single class. So according to the commission, जो आपका जो हचन्स कमीशन था, उनके अकॉर्डिंग जो एक फ्री मार्केट थी प्रेस के लिए, कि प्रेस बिल्कुल ही फ्री थी, जो एक फ्री मार्केट थी प्रेस के लिए, उसने कहीं ना कहीं जो सोशल नीड थी और जो एक इंफॉर्मेशनल नीड थी, जो कि लेस वेल क्लास था, मतलब जो कि बहुत ज़्यादा जो मेजॉरिटी क्लास था और जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं था, जो एक वर्किंग क्लास था, जो एक मिडिल क्लास था, जो नॉर्मल लोग थे सोसाइटी की मेजॉरिटी, उनकी कहीं ना कहीं नीड्स को फुलफ़िल नहीं किया, उनकी इंफॉर्मेशनल नीड्स को और जो उनकी सोशल नीड्स है उसको फुलफ़िल नहीं किया. जबकि उस फ्री मार्केट ने, जो मास कम्युनिकेशन का एक तरीके से फ्री मार्केट था, मीडिया के लिए जो एक फ्री मार्केट था, अकॉर्डिंग टू द लिबर्टेरियन थ्योरी की प्रेस एकदम फ्री है, तो उस फ्री मार्केट ने कहीं ना कहीं एक सिंगल क्लास की पावर को इंक्रीज़ किया, ना कि जो एक मेजॉरिटी हमारा जो क्लास है, जो एक सोशल क्लास है, जो एक मिडिल क्लास है, उसकी नीड को फुलफ़िल नहीं किया. There was little expression of diverse
views, the emergence of radio, films, and television also suggested that some public control and some means of accountability has become necessary. तो इस जो हचन्स कमीशन था, उन्होंने सजेस्ट किया कि जो आपका रेडियो, टेलीविज़न, फिल्म्स है और जो न्यूज़पेपर है, उस पर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कंट्रोल होना चाहिए और मीडिया को कहीं ना कहीं अकाउंटेबल भी बनाना चाहिए. मीडिया शुड ऑल्सो बी अकाउंटेबल. अगर उसके अथॉरिटी है तो उसको सर्टेन चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी पड़ेगी. इफ़ पावर कम्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो इस थ्योरी ने बात की पावर कम्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटी. आपको अगर पावर मिली है तो आपको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं, आपको उसको भी फुलफिल करना होगा एंड यू हैव टू बी अकाउंटेबल टू सर्टन क्वेश्चंस ऑल्सो. आप आंसरेबल होंगे उन चीज़ों के लिए. ये नहीं कि आपने कुछ भी छाप दिया, कुछ भी पब्लिश कर दिया, उससे हमारी सोशल हार्मनी, उससे हमारी जो पीस है वो कहीं ना कहीं हार्म अगर होगी तो येस यू हैव टू बी अकाउंटेबल. द प्रेस हैव टू बी अकाउंटेबल फॉर दैट. नाउ features of social responsibility theory. So, social responsibility theory is a radical statement for instead of demanding freedom of press, it imposes a responsibility on the media owners. Yes, so social responsibility, according to social responsibility theory, the certain responsibility should be on the media owners and should be the media persons. मीडिया पर्सनस जो है, मीडिया ओनर्स जो हैं, उनके ऊपर कुछ सर्टन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनके ऊपर डालनी चाहिए. उनकी सर्टन रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द कंट्री, टुवर्ड्स द सोसाइटी, टुवर्ड्स द पीपल ज़रूरी है. अगर वो फ्री हैं, इफ़ दे हैव द राइट टू कवर, टू पब्लिश, टू criticize any personality, anyone, then they should also be responsible for anything. The media should work as a responsible टूल. मीडिया को एक रिस्पॉन्सिबल टूल की तरह काम करना चाहिए और जो मीडिया ओनर्स हैं और मीडिया पर्सनस हैं उनको भी रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए. उनके ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होनी चाहिए टुवर्ड्स द सोसाइटी. सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको मिलनी चाहिए. So under the social responsibility theory, ownership of media is mostly private, yes, and practice self-regulation according to standard codes and guiding principles. The media is relatively free of arbitrary government control. Yes, so according to the social responsibility theory, जो मीडिया की ओनरशिप है वो प्राइवेट होनी चाहिए, नॉट द पब्लिक ओनरशिप और गवर्नमेंट ओनरशिप. तो मीडिया की जो ओनरशिप है अकॉर्डिंग टू सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्योरी शुड बी प्राइवेट एंड मीडिया शुड प्रैक्टिस सेल्फ रेगुलेशन. मतलब उसको अपने ऊपर खुद से ही रेगुलेशंस लगाने हैं, खुद के ही कोड ऑफ कंडक्ट और जो प्रिंसिपल्स हैं उसको फॉलो करना है. और मीडिया शुड नॉट बी अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट के कंट्रोल में मीडिया नहीं होनी चाहिए, खुद के ही कंट्रोल में होनी चाहिए. खुद के ही जो उसके सर्टन स्टैंडर्ड्स हैं, सर्टन कोड्स हैं, गाइड कोई सर्टन प्रिंसिपल्स हैं, उन्हीं प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग उसे काम करना चाहिए और अपने ऊपर सेल्फ रेगुलेशन लगानी चाहिए, सेल्फ कंट्रोल रखना चाहिए किसी हद तक उसे अपने ऊपर, rather than गवर्नमेंट कंट्रोल होना चाहिए. So here the social responsibility talk about the ownership of media, that it should be private and the media persons and media organization should follow the self regulation. Self regulation that means कि वो खुद से अपने ऊपर कंट्रोल रखे कि उन्हें किस लिमिट तक उन्हें काम करना है, किस लिमिट तक उन्हें अपनी फ्रीडम को एंजॉय करना है और बियॉन्ड दैट, जिससे कि उनकी फ्रीडम और जो उनका जो पब्लिकेशन है उससे जो नेशनल हार्मनी है, नेशनल पीस है, कंट्री का जो पीस है वो कहीं ना कहीं बना रहे, हार्म ना हो और किसी की प्राइवेसी को वो ब्रीच ना करे. So here social responsibility theory says that media is relatively free of arbitrary government control. Under a social responsibility media system, under a social responsible media system, the role of the media is to serve the public, yes, and in order to do so, should remain free of government interference. So according to the social responsibility theory,
द मीडिया का जो रोल है वो पब्लिक को सर्व करना होना चाहिए, सिटीजन्स को सर्व करना होना चाहिए, सोसाइटी को सर्व करना होना चाहिए, उनके बेनिफिट में काम करना चाहिए, उनके अगर वो कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो उसको कवर करना चाहिए ताकि वो अथॉरिटी तक, गवर्नमेंट तक पहुंच सके। एंड ये सारी चीज़ें, इन सारे चीज़ों को अचीव करने के लिए, पब्लिक को सर्व करने के लिए और उनके डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए ये ज़रूरी है कि मीडिया जो है वो गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस से फ्री रहे। द मीडिया शुड बी फ्री फ्रॉम द गवर्नमेंट इंटरफेरेंस. So the idea of this theory is that the media has a moral obligation to provide adequate information for citizens to make informed decisions. So यहाँ पे इस थ्योरी ने बात की कि मीडिया की एक मॉरल ड्यूटी होनी चाहिए, yes moral obligation, that means moral duty होनी चाहिए कि वो citizens को, जो जनता है उसको adequate amount of इनफ अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन पहुंचाए ताकि वो एक जागरूक सिटीजन्स, जागरूक नागरिक की तरह डिसीजंस ले सके, निर्णय ले सके। तो उन तक इतनी इंफॉर्मेशन जानी चाहिए कि वो निर्णायक हो जाए, वो अपने डिसीजंस के लिए, अपने बेनिफिट के डिसीजंस के, अपने वेलफेयर के लिए डिसीजंस ले पाए, गवर्नमेंट के वर्क को रिकग्नाइज कर पाए गवर्नमेंट ने, और एक थिंकिंग डेवलप हो उनके माइंड में कि वो एक इन्फॉर्म डिसीजन ले पाए, एक रैशनल डिसीजन ले पाए, ना कि एक इरैशनल डिसीजन ले पाए। Now the feature is the first feature is the private press ownership. Yes, so social responsibility theory says that press is supposed to be owned privately. The government does not own the press. The press owners should publish within the ethical guidelines and in a responsible way. Yes, so according to the social responsibility theory, जो प्रेस है वो प्राइवेट ओन्ड होनी चाहिए, गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंट ओन नहीं होनी चाहिए, और जो प्राइवेट ओनर्स हैं प्रेस के, मीडिया के, उनको जो भी वो पब्लिश करें वो एक इथिकल गाइडलाइंस, जो उनके सेल्फ रेगुलेशन गाइडलाइंस है उसके अंडर पब्लिश करें और एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल तरीके से किसी भी इवेंट को, किसी भी इशू को कवर करें। यस, सो द नेक्स्ट पॉइंट इज helps democracy prospers. Yes, so media helps in maintaining democracy and does not encourage authoritarianism or communism. So according to social responsibility theory, प्रेस का काम ये है कि वो डेमोक्रेसी को प्रॉस्पर कर सके और इंक्रीज कर सके और मेंटेन कर सके अपनी कंट्री में डेमोक्रेसी को, और वो अपनी न्यूज़ के थ्रू हमेशा डेमोक्रेसी जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, डेमोक्रेटिक जो वर्क है उसको प्रमोट करे, ना कि वो अथॉरिटेरियनिज्म को और कम्युनिज्म को प्रमोट करे। यस, सो द नेक्स्ट feature is media as a democratic institution. Yes, media is a part of the government and it must work on its own. मीडिया जो है वो गवर्नमेंट का पार्ट है और उसको गवर्नमेंट अपने आप मतलब अपने दम पे वर्क करना चाहिए, and it has a freedom to do anything they want. Yes, media has a freedom to do anything they want, just not work out of ethical standard. हालांकि they have the freedom to do anything they want, but they should not forget, the media should not forget the ethical standard. They should not go beyond the ethical standard of journalism. Now, public participation. Public must get to participate through comment, response, write, and get involved in all aspects of media work. So now, social responsibility theory, very important feature is public participation. So जो मीडिया है, मीडिया जो कवर करता है, मीडिया जो पब्लिश करता है, और जो होल ऑन अ होल जो मीडिया है
उसमें एक पब्लिक पार्टिसिपेशन भी होना चाहिए। जैसे कि आप लोग अभी करेंट टाइम में देखते हैं कि फीडबैक के लिए आप इस ईमेल आईडी पे फीडबैक दीजिए, या आप कोई प्रोग्राम देखते हो या कोई न्यूज़ देखते हो तो उस पर्टिकुलर न्यूज़ शो से रिलेटेड जो भी आपका फीडबैक है आप कमेंट कर सकते हो। आप ट्विटर पे, आप इंस्टा पे आप हमें फॉलो कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, फेसबुक पेज पे आप कमेंट कर सकते हो। इस तरीके के आप देखते हो नाउ डेज अब जो है वो ज़्यादा अपॉर्चुनिटी जो पब्लिक है उसको पब्लिक गेट्स अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी नाउ डेज टू पार्टिसिपेट इन द मीडिया कंटेंट। तो अब वो मीडिया कंटेंट या मीडिया का जो एक सेटअप है मीडिया के प्रोसेस में, वो अब पार्टिसिपेट करते हैं, कर सकते हैं थ्रू ईमेल्स, थ्रू कमेंट ऑन फेसबुक, इंस्टा और लाइक ट्विटर। मोस्टली द ट्विटर न्यूज़ में अगर न्यूज़ की बात करें, इन्फॉर्मेशन की बात करें, तो हम ट्विटर पे किसी भी पर्टिकुलर न्यूज़ को या फिर किसी पर्टिकुलर इशू पे हम कमेंट कर सकते हैं। सो नाउ अ डेज दिस थ्योरी दिस द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्योरी फीचर पब्लिक पार्टिसिपेशन इज वेरी फेमस। नाउ अ डेज पब्लिक have the opportunity to participate in media content, yes, through their emails, through their comments। तो होता है कि आप अगर आप का कोई भी आपका ओपिनियन है, आपकी कोई भी सोच है, आपका कोई भी थॉट है, तो आप इस पे ईमेल कर सकते हैं अपने थॉट्स को, अपने आइडियाज़ को। सो इस तरीके से सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी गेव द वे टू द पब्लिक टू पार्टिसिपेट इन द मीडिया एंड द मीडिया इन द मीडिया कंटेंट। Emphasis on social responsibility. Now, the media must be responsible towards the society. So this theory says that the media should be responsible towards the society, and it should work that is for the benefit of the society, should promote the events that is for the progress of the society, for the development of the society, should also cover the issues that is for the citizens, that is for the public welfare, that is for the individual, the needful interest। तो जो रूरल एरियाज़ के लोग हैं, जो गरीब हैं, जो मिडिल क्लास है, उनकी अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको प्रमोट करना, उसको पब्लिश करना, ताकि उसकी तरफ जो अथॉरिटीज़ हैं, जो गवर्निंग एलीट्स हैं, उनका ध्यान जा सके और उनकी प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व हो सके। Yes, so emphasis on social responsibility. Media should always be responsible towards the society. Now, come to the self-regulation in media. Yes, the media must have some boundaries within itself to be ethical। यहाँ पे सेल्फ रेगुलेशन की अगर हम बात करें तो मीडिया को अपने ऊपर ही कुछ रेगुलेशंस, कुछ कंट्रोल कुछ सर्टेन स्टैंडर्ड मेंटेन करने होंगे, कुछ सर्टेन कंट्रोल करने होंगे, ताकि वो ऐसी न्यूज़ पब्लिश ना करें, ऐसे शब्दों का, भड़काऊ शब्दों का प्रयोग, डेरोगेटरी शब्दों का प्रयोग ना करें अपनी न्यूज़ में, जिससे कि आपसी मतभेद फैले, या फिर किसी की पर्सनल लाइफ को ब्रीच ना करे जिससे उसका लॉस हो या फिर किसी का पर्सनल इंटरेस्ट हो। So the media must have some boundaries within itself to be ethical. The regulation are to be followed by all the media professionals involved in the particular institution. Yes, so जो भी रेगुलेशंस हैं, जो भी सेल्फ रेगुलेशंस हैं, जो भी उनके कोड ऑफ कंडक्ट है, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, उसको सभी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन, सभी मीडिया प्रोफेशनल्स जो हैं वो फॉलो करें, जिससे कि एक बेटर जर्नलिज्म क्रिएट हो सके, मेंटेन हो सके और आगे प्रॉस्पर हो सके। Now, code of ethics. All the media institution must have a written or unwritten code of ethics, which should be the standard followed by all. Yes, so मीडिया कोई लीगली कंट्रोल नहीं होती है। मीडिया को खुद से अपने आप को कंट्रोल करना है। मीडिया के खुद से कुछ सर्टेन कोड ऑफ कंडक्ट्स हैं, कोड ऑफ एथिक्स हैं, जो कि उन्हें फॉलो करने, वेदर इट इज़ रिटन और अनरिटन। सो दे शुड ऑलवेज, द मीडिया पर्सन, द मीडिया ऑर्गेनाइजेशन शुड ऑलवेज maintain the certain code of conduct and ethics of the journalism. Now come to the professional standard. Professional standard, that means the quality, the quality of writing, the quality of publishing, the quality of
reporting, covering everything. The professional standard should be maintained. Yes, so the quality of the publishing should be maintained. False interpretation of any information should be avoided. Yes, सो प्रोफेशनल स्टैंडर्ड आपका जो पब्लिशिंग है वो अच्छी होनी चाहिए, और जो अगर फेक इंटरप्रिटेशन है और फॉल्स इंटरप्रिटेशन है किसी भी इंफॉर्मेशन का, वो हमेशा अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज जर्नलिज्म इज ऑल अबाउट ट्रुथ, एक्यूरेसी एंड फैक्ट्स. जर्नलिज्म जो है वो आपका फैक्ट बेस्ड होता है, ट्रुथ बेस्ड होता है और एक्यूरेसी बेस्ड होता है. सो जो कोई भी न्यूज़ होती है, अगर कोई रिपोर्टर कवर करता है, जर्नलिस्ट कवर करता है, तो जो भी वो इवेंट कवर कर रहा है वो सही होना चाहिए, क्रिएटेड नहीं होना चाहिए, फॉल्स नहीं होना चाहिए, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो भी वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है अपनी न्यूज़ में वो एक्यूरेट होनी चाहिए, करेक्ट होनी चाहिए, उसके साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, और एक ऑब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन होना चाहिए किसी भी इवेंट का. फॉल्स इंटरप्रिटेशन या फेक इंटरप्रिटेशन नहीं होना चाहिए, एंड इट शुड बी अवॉइडेड बाय द journalist or by the reporters. Media role of criticizing government. Yes, exactly, it is important. So media role of criticizing government. Media is allowed to criticize the government role, works and policies. It is done to help the government get better. So social responsibility says that मीडिया का जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट रोल होता है वो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना. ये नहीं कि आप उसे प्रेज ही किए जा रहे हैं, एकदम भक्त बने जा रहे हैं गवर्नमेंट के. सी, गवर्नमेंट की अच्छी चीज़ों को प्रेज करना भी मीडिया का रोल है, बट अगर गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज नहीं किया जाएगा उनके किसी भी गलत डिसीजन पे या गलत काम पे, तो द गवर्नमेंट विल नॉट डू बेटर. सो गवर्नमेंट अच्छा काम करे, बेटर, हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा करे, बेटर करे, इसके लिए ज़रूरी है कि मीडिया गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करे. सो यहाँ पे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्योरी सेज दैट कि मीडिया को अलाउ करना चाहिए, मीडिया शुड बी अलाउड, मीडिया इन दिस, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, मीडिया इज अलाउड टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट रोल. उनके काम को, उनके फंक्शंस को क्रिटिसाइज करना मीडिया अलाउड है करने के लिए, उसको करना चाहिए, जिससे कि जो गवर्नमेंट है वो और ज़्यादा बेटर हो. लाइक इन authoritarian theory, media is not allowed to criticize the government. Yes, so authoritarian theory के according media allowed नहीं थी गवर्नमेंट को criticize करने के लिए, बट इन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्योरी ये मीडिया का, प्रेस का एक बहुत बड़ा फंक्शन है, बहुत बड़ा फीचर है, बहुत बड़ा रोल है कि वो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करे, जिससे कि जो गवर्नमेंट है वो और ज़्यादा बेटर करे काम, और अपने सिटीजन्स के लिए बहुत बेटर करे, और जिससे कि जब गवर्नमेंट बेटर काम करेगी तो नेशन भी बेटर डेवलप होगा, और कुछ ना कुछ हमेशा आपकी कंट्री में कुछ ना कुछ अच्छा होगा, इनोवेटिव होगा, डिस्कवरीज होंगी. लाइक अगर करप्शंस होते रहेंगे तो आपकी जो गवर्नमेंट है, जो आपकी कंट्री है वो वीक होती जाएगी, और अगर करप्शंस एक्सपोज होंगे या करप्शन फ्री आपकी गवर्नमेंट होगी तो आपका नेशन कहीं ना कहीं बहुत ग्रो करेगा, और जो आपके जो सिटीजन्स हैं उनको सारी फैसिलिटीज़ मिलेंगी, और सिटीजन्स भी कहीं ना कहीं, कंट्री के सिटीजन्स भी ग्रो करेंगे. Helping eradicate social problem. Yes, it is the major feature of the social responsibility theory. Helping eradicate social problem. Media must speak against and aware people about social problem, as it is media's responsibility to work for the betterment of the society. Yes, so उसको क्या कहते हैं, मीडिया का काम है कि जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं, जो सोशल इविल्स हैं, लाइक चाइल्ड मैरिज, लाइक आपका चाइल्ड लेबर, आपका ह्यूमन ट्रैफिकिंग, आपका ह्यूमन एक्सप्लॉयटेशन, ये सब एक तरीके के सोशल प्रॉब्लम्स हैं, या फिर डॉवरी सिस्टम. So these are all the social problems. So media should always speak against the social problem and make the people aware about the social problem, and promote promote the good things in society, and helps the people, helps the government to eradicate the social problem and promote the
good social habits and good social works, and promote the good social works, and eradicates the social problem. And so it is the responsibility of the media to work for the betterment of the society. Or yes, अगर media कवर करता है सोशल प्रॉब्लम से रिलेटेड न्यूज़ को, और उसके अगेंस्ट एक कैंपेन चलाता है, उसके अगेंस्ट एक आवाज़ उठाता है, तो नो डाउट लोग जागरूक होंगे, एंड गवर्नमेंट विल टेक सर्टेन एक्शंस अगेंस्ट द पीपल हु आर प्रमोटिंग दीज सोशल इवल, सोशल प्रॉब्लम्स। और गवर्नमेंट भी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का भी फोकस जाएगा, गवर्नमेंट भी हेल्प करेगी ये जो सोशल इवल्स हैं, सोशल प्रॉब्लम्स हैं, उसको इरेडिकेट करने में और सोसाइटी को बेटर करने में। Pluralistic media including ideas and people from different groups. Yes, so social responsibility theories focus on pluralistic media. Media must write the views of different groups of people and not only about a single group. It must never be biased. Yes, so according to the social responsibility theory, मीडिया को सिंपल एक सिंगल जगह पे ही कॉन्सेंट्रेट नहीं करना चाहिए, सिंगल आइडिया पे, सिंगल ग्रुप पे, सिंगल पीपल पे कॉन्सेंट्रेट नहीं करना चाहिए, बट इट शुड focus on all aspects, and to different people, to different views, to different ideas। और सिर्फ एक पर्टिकुलर ग्रुप पे ही फोकस नहीं करना चाहिए, उनके आइडियाज़ पे, उनके व्यूज़ पे फोकस नहीं करना चाहिए, बट सोसाइटी में डिफरेंट ग्रुप्स हैं, बहुत सारे आइडियाज़ हैं, सो सारे एस्पेक्ट से एक कंटेंट क्रिएट करना चाहिए, और एक कंटेंट के आइडियाज़ ग्रास्प करने चाहिए, और सारे एस्पेक्ट्स को देखते हुए कंटेंट क्रिएट करना चाहिए, एंड इट शुड नेवर बी बायस। द मीडिया मस्ट नेवर बी बायस, उसको बायस्ड नहीं होना चाहिए। सोशल बेनिफिट, media must work for the society and not to do things that are beneficial, and only do the things that are beneficial to the society। सो मीडिया को ऐसे काम करना, ऐसे रिपोर्ट्स को कवर करना चाहिए और इस तरीके से काम करना चाहिए कि जिससे किसी इंडिविजुअल का नहीं, किसी इंडिविजुअल का बेनिफिट ना हो, कि पूरी सोसाइटी का बेनिफिट हो। इट शुड नॉट राइट अबाउट द थिंग्स that are ambiguous or contradictory, as those messages might cause conflict in the society। Yes, so हमेशा whenever the reporter is writing a news, whenever the reporter is covering any event, so the person, the reporter, the journalist must think of social benefit, the benefit must think the benefit of the society, and must work accordingly, according to the benefit according to the benefit of the society and benefit of the whole nation। Now, the principles of social responsibility theory. So, Dennis Maxwell 1987 has summarized the basic principles of social responsibility theory as follows. The first principle is media should accept and fulfill certain obligations to the society. That means media को कुछ duties हैं, certain duties हैं, उन्हें accept करना चाहिए towards the society और उन duties को fulfill करना चाहिए। These obligations are mainly to be met by setting high or professional standards of standard of informativeness, truth, accuracy, objectivity and balance। So यहाँ पे जो मीडिया की जो एक ड्यूटी है कि वो जो है वो एक प्रोफेशनल स्टैंडर्ड को अचीव करे थ्रू इंफॉर्मेटिवनेस। उनकी न्यूज़ में उनकी जो एक उनका टास्क है इंफॉर्मेटिवनेस, जो उनकी जो न्यूज़ है उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, वो सही होनी चाहिए, जो भी मीडिया कंटेंट है वो सही होना चाहिए, इन्फॉर्मेटिवनेस होनी चाहिए उसमें, और वो जो कंटेंट है वो एक्यूरेट होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, दैट मीन्स बायस नहीं होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, दैट मीन्स दैट मीन्स बायस नहीं होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव मतलब ऑल शुड बी कवर्ड फ्रॉम ऑल साइड, और whatever has happened should be covered as it is, not the subjectiveness in the media content। Yes, if we talk about news, it should be objective, not subjective।
In accepting and applying these obligations, media should be self-regulating within the framework of law and established institutions. Yes, so while performing the duty, while performing the work, media शुड ऑलवेज बी सेल्फ रेगुलेटिंग. उसको अपने आप को कंट्रोल करना आना चाहिए और उसे जो एक सर्टन गाइडलाइंस हैं, जो उसके ऑर्गेनाइजेशन की गाइडलाइंस हैं, और उसको एक कानून के दायरे में रह कर ही काम करना चाहिए. उसको मीडिया को कानून के अगेंस्ट नहीं जाके काम करना चाहिए, लॉ के अगेंस्ट जाके काम नहीं करना चाहिए. और जो सर्टन स्टैब्लिश, जो उसके इंस्टीट्यूशन के स्टैब्लिश जो कोड ऑफ कंडक्ट्स हैं, जो फ्रेमवर्क है उनके काम करने का जो गाइडलाइंस है, उसके अंतर्गत ही काम करना चाहिए, उसके बियॉन्ड जाके काम नहीं करना चाहिए. मीडिया शुड अवॉइड whatever might lead to crime, violence or civil disorder or give offense to minority group. Yes, so मीडिया को ऐसी चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए जो कि कहीं ना कहीं क्राइम पे शुरू हो जाए. कोई ऐसी चीज़ को नहीं, ऐसी चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए जिससे कि लोग क्राइम शुरू कर दें करना, वायलेंस करना शुरू कर दें, या फिर जो हमारा सिविल जो एक ऑर्डर है उसको डिसऑर्डर कर दें, और कुछ ऐसी चीज़ें जिससे माइनॉरिटी ग्रुप ऑफेंस हो. तो इस तरीके की चीज़ें जो मीडिया है उसको अवॉइड करनी चाहिए. मीडिया एज अ होल शुड बी प्लूरलिस्टिक एंड रिफ्लेक्ट्स द डाइवर्सिटी of the society, giving access to various point of views and to the right of reply. Yes, मीडिया को प्लूरलिस्टिक वे में काम करना चाहिए और जो हमारी सोसाइटी की डाइवर्सिटी है उसको देखते हुए काम करना चाहिए. सारे ग्रुप्स, जो वट एवर द ग्रुप्स आर, वट एवर द सोसाइटीज़ आर, वट एवर द कम्युनिटीज़ आर, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी चाहिए. सारे किसी एक ही ग्रुप, किसी एक ही कम्युनिटी की ही इंफॉर्मेशन या उसको ही कवरेज, इवेंट्स को, हैपनिंग्स को ही कवरेज नहीं देनी चाहिए. बाकी सारे ग्रुप, सारे जितने भी डिफरेंट कम्युनिटीज़ हैं, सबकी न्यूज़ को कवर करना चाहिए और सबको देखते हुए, सबके पॉइंट ऑफ व्यू को एक्सेस करके एक व्यू पॉइंट क्रिएट करना चाहिए, न्यूज़ देनी चाहिए, कंटेंट क्रिएट करना चाहिए, और द पीपल शुड हैव द राइट टू रिप्लाई टू द मीडिया. Society and public have a right to expect high standard of performance and intervention can be justified, secure public good. Journalism and media professional should be accountable to the society as well as employer and the market. Yes, so जो जर्नलिज्म है, पत्रकारिता है, और जो मीडिया प्रोफेशनल्स हैं जो काम करते हैं, मास कम्युनिकेशन के जो पर्सनस हैं, पीपल हैं, मीडिया प्रोफेशनल्स हैं, वो कहीं ना कहीं आंसरेबल होंगे सोसाइटी को, और उनका जो एम्प्लॉयर है, उनका जो ऑर्गेनाइजेशन है, और जो एक पूरी मास मीडिया मार्केट है, शुड बी अकाउंटेबल टू द society, should be accountable to the nation, should be accountable to the public. अब certain examples of social responsibility theory are like reports of health news in the media can be taken as media acting socially responsible. Yes, so health related news आपकी, and child trafficking जो एक crime है, child labor से related news, sex racket से related news, और आपकी human trafficking से related news, organ trafficking से related news, that are all the example of social responsibility theory. The media give information and awareness on health problem. Yes, it provide awareness on some basic health problem like diarrhea and how to cure them. Like जब मलेरिया, डेंगू, इस तरीके की जब बीमारियां फैलती हैं, तो उसको इन्फॉर्म करना, पब्लिक को बताना कि अब ये सीज़न आ गया इन सारी बीमारियों का, और कैसे इससे आप इससे कैसे अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे क्योर कर सकते हैं, उस तरीके की इन्फॉर्मेशन, उस तरीके की न्यूज़ को कवर करना, दैट विल ऑल कम अंडर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्योरी. द मीडिया गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट एपिडेमिक्स एंड हेल्थ हैजार्ड. Here, acting responsibly is by not spreading wrong information and panic. Yes, अगर हम current situation की बात करें तो
इस टाइम पे कोरोना चल रहा है और बहुत सारे हेल्थ हिजार्ड्स हो रहे हैं, बट यहाँ पे मीडिया को बहुत ही रिस्पॉन्सिबल वे में एक्ट करना है ताकि वो कोई भी ऐसी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन ना फैलाए कोरोना के बारे में, जिससे कि पैनिक फैल जाए लोगों में। सो कोरोना से रिलेटेड जो भी न्यूज़ है उसको भी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कवर करना, दैट इज ऑल्सो comes in your social responsibility theory, feature of social responsibility theory. There have been instances of mass panic among the people because of some misunderstood information on health published various media. ऐसा बहुत बार हुआ है कि लोगों में पैनिक फैल गया है जस्ट बिकॉज कि उन्होंने कोई न्यूज़ को मिसअंडरस्टूड कर लिया है जो कि हेल्थ से रिलेटेड है, जो कि बहुत सारी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन ने पब्लिश की हैं। ये भी यहाँ पे ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि आप शब्दों का चयन बहुत सोच समझ के करें, जिससे ऐसे शब्दों का चयन ना करें या फिर आपकी न्यूज़ इतनी करेक्ट होनी चाहिए, मिसलीडिंग नहीं होनी चाहिए, जिससे कि इस तरीके का पैनिक और जिससे कि इस तरीके की जो मिस इंफॉर्मेशन है वो मतलब उसकी सिचुएशन क्रिएट हो, जो लोग मिसअंडरस्टूड कर लेते हैं वो सिचुएशन कहीं ना कहीं क्रिएट ना हो। Reporting on the performance of government institutions and unveiled tyranny and corruption by the media is also an example of socially responsible media, as media acts like a critique of the government. Yes, so गवर्नमेंट के परफॉर्मेंसेस पे रिपोर्ट करना, अगर कुछ गलत हुआ है तो उस पर रिपोर्ट करना, कोई करप्शन हुआ है या गवर्नमेंट कोई डिक्टेटरशिप कर रही है उस पर रिपोर्ट करना, these reports are also the example of social responsibility theory. But there are times when the media has media has severely but there are times when the media has severely damaged the reputation of some politicians and political parties through irresponsible journalism, leading to major conflict in the society. Yes, so यहीं पे बात आती है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की। मीडिया अगर फ्री है कुछ भी पब्लिश करने के लिए तो उसको अपने एक सर्टन कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर, एक प्रोफेशनल स्टैंडर्ड के अंदर, एथिक्स के अंदर रह के काम करना है। कि अब किसी के पर्सनल इंटरेस्ट के लिए या मज़े के लिए किसी की रेपुटेशन को हार्म नहीं करना है। सो दिस इज ऑल अबाउट द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी theory of the media, the social responsibility theory of the press, one of the theory of the normative theories of press. So this is the fourth theory, the social responsibility theory. So I hope you will understand the concept of social responsibility theory. So student, in our next lecture, the upcoming lecture, we will discuss the two more theories that are added by Dennis Maxwell, and that is development media theory and democratic participant media theory. So in the upcoming lectures, we will discuss about these two theories of mass communication that are added laterly by the theorist Dennis Maxwell. I hope you will enjoy this lecture on social responsibility theory, and you will get to know all the points of social responsibility theory, and I hope your concept will be uh, cleared by this lecture. Thank you, students.